نیوز اور خبر کا مطلب ہے اہم اطلاع۔ عوامی مسائل کو عہدیداروں اور حکومت تک پہنچانے کا اہم ذریعہ ہے نیوز۔ حقائق پر مبنی شہری، ریاستی، قومی اور بین الاقوامی خبریں دیکھیے میٹرو اردو خبروں میں۔ سیاسی اتار چڑھاؤ، عید اور تہوار، جرائم و حادثات، تعلیمی، ادبی اور معاشرتی سرگرمیوں کی حقیقی عکاسی کے لیے دیکھتے رہیے میٹرو اردو خبریں۔ کشمیر ہاؤس بیگم بازار سن 1947 سے مشہور آپ کی خدمت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ شادی بیاہ ہو کہ ولیمہ تقاریب، کشمیر ہاؤس کے بنا ادھوری۔ اپنی دعوت کو یادگار بنائیے کشمیر ہاؤس کی شمع کلاسک باسمتی رائس، ہر برانڈ کے بریانی رائس، اصلی گرم مسالے، کرانہ آئٹمز اور ڈرائی فروٹ، ٹن فروٹس، ساسز، پینٹ کھجور، اصلی زعفران اور بری کے سودے کے ساتھ۔ کشمیر ہاؤس آپ کے ساتھ، سیدھے چلے آئیے کشمیر ہاؤس۔ یاد رکھیں کشمیر ہاؤس بیگم بازار حیدرآباد۔ شمع جو روشنی پھیلائے اور شمع باسمتی رائس ہر تقریب کی شان بڑھائے، پورے خاندان کا بھروسہ جس پر ہو اور ہر کسی کی پسند بن جائے۔ شمع کلاسک باسمتی رائس، اس کا دانہ دانہ الگ جو ہر دعوت کی لذت بڑھائے۔ 25 کلو، 10 کلو، 5 کلو اور 1 کلو کے بیگ میں اب ہر سپر مارکیٹ، جنرل سٹور اور کرانہ سٹور میں دستیاب ہے۔ شمع کلاسک باسمتی رائس۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں عمران خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو اردو خبریں۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے سرخیوں پر۔ سرخیوں کے پیش کردہ ہیں دبئی ہوم انٹیریئرز، بندر ہلز روڈ نمبر 1 نیئر کراچی بیکری۔ کوکٹ پلی ہاؤسنگ بورڈ پولیس نے اغوا کرنے والی ایک ٹولی کو کیا گرفتار۔ ٹی آر ایس سے معطل شدہ لیڈر رگھو نندم کی جانب سے لگائے گئے الزامات پر عدم کارروائی، سی بی آئی کی جانب سے تحقیقات کا مطالبہ۔ چتور میں خانگی فائنانسر کی جانب سے کسان کو شدید زدوں کو فائنانسر کو پولیس کی تائید حاصل۔ میٹرو ٹی وی کا خصوصی پروگرام خاص بات ہمارے ساتھ میں خسرو پاشا بیابانی سے بات چیت۔ مرکزی وزیر کے رحمان خان نے لیک ویڈیو گیسٹ ہاؤس میں وقف جائیدادوں کے تحفظ کے عنوان سے ایک پروگرام کا اہتمام کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ملٹی سیکٹر ڈیولپمنٹ کے وقت آندھرا پردیش شامل نہیں تھا، اب آندھرا پردیش کو شامل کیا گیا۔ آندھرا پردیش کے 12 ٹاؤن میں یہ کام کیا جائے گا۔ مرکزی حکومت پری میٹرک اور پوسٹ میٹرک اسکالرشپ دی رہی ہے۔ مولانا آزاد فیلوشپ کے عنوان سے بھی اسکالرشپ دی جا رہی ہے۔ انہوں نے آندھرا پردیش وقف بورڈ کی جائیدادوں کو حساب سے نمبر 1 قرار دیا، اپنی آمدنی کے ذریعے سارے ہندوستان میں طالب انقلاب لانے کا اہل قرار دیا۔ میں آندھرا پردیش کے کیپٹل حیدرآباد میں ہوں اور مائنارٹی منسٹری کی جو ملٹی سیکٹرل ڈیولپمنٹ پلان جو 90 مائنارٹی کانسنٹریٹ ڈسٹرکٹ میں جاری تھی، اس وقت پر آندھرا پردیش اس میں نہیں تھا، تو اب جو ہم ریویمپ کے بعد ملٹی سیکٹر پلان ہم ڈسٹرکٹ ضلع سے ہم بلاکس کو گئے ہیں۔ اب بلاکس میں آندھرا پردیش بھی ان ضلعوں میں آ جاتا ہے، ان اسٹیٹس میں۔ تو اب ہم آندھرا میں 10 بلاکس اور 12 ٹاؤنس میں ہمارے ملٹی سیکٹر ڈیولپمنٹ پلان جاری ہوگی۔ اور اسی طرح سے اسکالرشپس کی اسکیمز جو ہمارے اسکالرشپ دے رہے ہیں ہم پری پرائمری، پوسٹ پرائمری، پری میٹرک، پوسٹ میٹرک اینڈ میرٹ کنوینس اور نامپلی ایگزیبیشن گراؤنڈ پر بانتی گوڑ برادرز کی جانب سے عوام کو مچھلی کی دوا کھلائی گئی، جس میں 3 لاکھ عوام نے حصہ لیا۔ دوا کھلانے کے لیے 15 روپے لیے گئے۔ پولیس کے سخت سیکورٹی انتظامات تھے اور جگہ جگہ سی کیمرے نصب کیے ہوئے تھے اور کئی بڑے پولیٹیشین نے دوا کھانے والوں میں شامل ہیں۔ کوکٹ پلی ہاؤسنگ بورڈ پولیس نے اغوا کرنے والی ایک ٹولی کو گرفتار کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق راجو نامی شخص کے اغوا ہونے پر افراد خاندان نے کوکٹ پلی ہاؤسنگ بورڈ پر
पुलिस में एक शिकायत दर्ज करवाई थी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक मुकदमा दर्ज किया और विजयवाड़ा से 4 रोडी शटर्स को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक विजयवाड़ा में राजू की कई एकड़ अराजी है। इस अराजी को शंकर कुमार अपने नाम पर करने का मुतालबा राजू से कर रहा था और राजू ऐसा इनकार कर दिया, जिस पर शंकर कुमार ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर कुकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड में वाक़े उसके मकान पहुंच गए। राजू को अगवा करते हुए विजयवाड़ा अपने साथ ले गए। पुलिस को इत्तला मिलते ही इन चारों को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें अदालती तहवील में दे दिया। KPHB पुलिस मजीद तहकीकात कर रही है। TRS पार्टी से मुअत्तलशुदा लीडर रघुनंदन ने पार्टी सदर चंद्रशेखर राव, विजय शांति, हरीश राव पर इल्ज़ाम आयद किया था कि वो अन्नपूर्णा स्टेडियम मामले में नम्मागड्डा प्रसाद से 10 करोड़ रुपए पार्टी सदर और कायदीन ने हासिल किया था, जिसके वो चश्मदीद गवाह हैं, जिस पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। आज मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वो इस केस की CBI के जरिए तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में एक बस पुल के नीचे गिर जाने से 19 लोगों की मौत वाक़ होगी। तफसीलात के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में एक पैसेंजर्स बस में जिसमें करीब 40 मुसाफिरीन सफ़र कर रहे थे, इसके ड्राइवर की लापरवाही की वजह से यह हादसा रूनुमा हुआ। आनन फानन में जख्मियों को दवाखाना मुंतकिल किया गया। पुलिस ने शुबा ज़ाहिर किया कि हादसे की वजह ड्राइवर को नींद की झोंक आ गई। पुलिस ने सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया। बांतीगौड़ ब्रादर्स की जानिब से मिरक के मौके पर खिलाए जाने वाली मछली में दवा को फर्जी और गैर फ़ायदा बख्श करार देते हुए इस पर पाबंदी आयद करने के मुतालबे के साथ एक मुकामी वकील की जानिब से दाखिल करदा दरख्वास्त पर लोकायुक्ता ने कार्रवाई करते हुए कमिश्नर पुलिस और बल्दिया से एक रिकॉर्ड तलब की थी। क़ब्ल इसके कि इस पर कार्रवाई हो, बांतीगौड़ ब्रादर्स ने कोर्ट से रुजू होकर स्टे हासिल कर लिया। कोर्ट ने हिदायत दी कि वो इस साल दवा तकसीम करें, मगर आने वाले साल हुकूमत की बगैर इजाज़त अवाम से कोई वादा न करें। चित्तूर में खानगी फाइनेंसर को पुलिस की तायद हासिल है। फाइनेंसर के एमा पर रकम की वापसी के लिए किसान को पुलिस का शदीद ज़दोकोब करने की वजह से किसान की हालत नाजुक हो गई। तफसीलात के मुताबिक सिवैया नामी किसान खानगी फाइनेंसर से 2000 रुपये बतौर कर्ज हासिल किया था। वापसी में ताख़ीर की वजह से फाइनेंसर हिरासा करने लगा। एक मुश्त में ही रकम के साथ साथ सूद अदा करने का मुतालबा किया, जिस पर सिवैया ने कहा कि पैसा लौटाने के मौक़ूफ़ में नहीं है, उसे कुछ वक्त दिया जाए। ये सुनना ही था कि फाइनेंसर से इंतबाह दिया कि उसे मकामी पुलिस की तायद हासिल है, वह इसका काम तमाम करवा सकता है। ये कहते हुए वहाँ से रवाना हो गया और रात देर गए हरिप्रसाद नामी कांस्टेबल को लेकर उस किसान के घर पर हल्ला बोल दिया और उसे पुलिस वालों के साथ ले जाकर शदीद ज़दोकोब किया और उसके अफराद ख़ानदान को हिदायत दी कि वो रुपयों का इंतज़ाम करके पुलिस स्टेशन आए। अफराद ख़ानदान रुपयों का इंतज़ाम करके जब पुलिस स्टेशन पहुंचे तब देखा सिवैया पुलिस स्टेशन के बाहर एक किनारे पड़ा हुआ है। अफराद ख़ानदान से पुलिस वालों ने रकम तो हासिल कर ली, मगर सिवैया को दवाखाना मुंतकिल करने से कतरा रहे थे। मकामी अवाम की मदद से अफराद ख़ानदान ने उसे दवाखाना मुंतकिल किया, जहां उसकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। पुलिस की यह हरकत पर मकामी अवाम ने सख्त अल्फाज में मजम्मत की और कहा कि हम किसान हैं, हमारी कौन सुनता है। पहले तो पुलिस ये बात दबाने की कोशिश की, मीडिया की मुदाखलत के बाद आला अहदेदारों की भी मुदाखलत करना पड़ा और आला अहदेदारों ने मकामी अवाम को तयक़ुन दिया कि वो तहक़ीक़ के बाद ज़रूरी कार्रवाई करेंगे। ज़िले प्रकाशम के इलाके में एक नामालूम शख्स को 4 अफराद ने हमला करके कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक ये शख्स मोटरसाइकिल पर सवार था कि 4 नामालूम अफराद ने रास्ता रोक कर उसे शदीद ज़ख्मी कर दिया। वो ज़ख्मों की ताब न लाकर बरसरे मौका हलाक हो गया। ज़िले पुलिस इत्तला पाकर लाश को एक खानगी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया और एक केस दर्ज करते हुए नामालूम अफराद की तलाश शुरू कर दी। ज़िले अंगोल में एक कार डिवाइडर से टकराने की वजह से 2 की मौत वाक़ई हो गई। तफसीलात के मुताबिक अंगोल में एक कार जो कि बड़ी तेज़ रफ्तार से आ रही थी, जिसको काबू न करने की वजह से यह हादसा पेश आया। कार में सवार दोनों की मौत बरसरे मौका हो गई। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए नाशों को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया। अभी वक्त तो चला है मुख्तसर से वक्फे का।
कश्मीर हाउस बेगम बाजार सन 1947 से मशहूर आपकी खिदमत करते चले आ रहे हैं। शादी ब्याह हो कि वलीमा तकारीब, कश्मीर हाउस के बिना अधूरी। अपनी दावत को यादगार बनाइए कश्मीर हाउस की शमा क्लासिक बासमती राइस, हर ब्रांड के बिरयानी राइस, असली गरम मसाले, किराना आइटम्स और ड्राई फ्रूट, टिन फ्रूट्स, सॉसेस, पेंट खजूर, असली जाफरान और बरी के सौदे के साथ। कश्मीर हाउस आपके साथ। सीधे चले आइए कश्मीर हाउस। याद रखें, कश्मीर हाउस बेगम बाजार हैदराबाद। दुबई में 20 साल तक तहलका मचाने के बाद अब आपके ज़ौक़ की तकमील के लिए दुबई होम इंटीरियर्स हैदराबाद शहर में खुल चुका है। एक ऐसा सेंटर जहां मुनफरिद और दिलकश इंपोर्टेड फर्नीचर दस्तयाब है। शानदार और बेहतरीन सोफा सेट्स, डाइनिंग सेट्स, बेडरूम सेट्स, वुडन फ्लोरिंग और रिमोट कंट्रोल ब्लाइंड्स। ऐसा कलेक्शन जो आपके घर और ऑफिस की तमाम जरूरियात की तकमील करता है। दुबई होम इंटीरियर्स, आज ही तशरीफ लाइए। हमारा पता, हमारा टेलीफोन नंबर, दुबई होम इंटीरियर्स, वन स्टॉप सॉल्यूशन। शमा जो रोशनी फैलाए और शमा बासमती राइस हर तकरीब की शान बढ़ाए। पूरे खानदान का भरोसा जिस पर हो और हर किसी की पसंद बन जाए। शमा क्लासिक बासमती राइस, इसका दाना दाना अलग, जो हर दावत की लज्जत बढ़ाए। 25 किलो, 10 किलो, 5 किलो और 1 किलो के बैग में अब हर सुपरमार्केट, जनरल स्टोर और किराना स्टोर में दस्तयाब है। शमा क्लासिक बासमती राइस। वक्फे की बात की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। करीमनगर में एक सड़क हादसे के दौरान 4 की मौत मुकाम हादसे पर ही वाक़ई हो गई। तफसीलात के मुताबिक एक लारी और वैन के दरमियान तसद्दुम की वजह से यह हादसा पेश आया। ये लोग एक तकरीब में जाकर वापस हो रहे थे। वहाँ में वैन में मौजूद लोगों में से 4 लोगों की मौत हो गई, 10 जख्मी हो गए, जिनमें से 2 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। मकामी पुलिस ने वहां पहुंचकर जख्मियों को दवाखाने मुंतकिल किया और नाशों को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया और एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। प्रोफेसर कोदंडाराम ने शेरलिंगमपल्ली में खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले सरकारी मुलाजिमीन, तेलंगाना स्टूडेंट जॉइंट एक्शन कमेटी और तमाम हमख्याल सियासी व समाजी जमातों को मुश्तरका तौर पर जद्दोजहद करने का मशवरा दिया और उम्मीद ज़ाहिर की कि बहुत जल्द तेलंगाना का क़याम अमल में आएगा। यूसुफगढ़ा के इलाके जवाहर नगर में गुलामान मुस्तफ़ा वेलफेयर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट का क़याम ख्वाजा शरीफ शेखुल हदीस जामे निज़ामिया के हाथों अमल में आया। इस मौके पर चेयरमैन मोहम्मद ताहिर उर्फ नवाब, मोहम्मद हफीज़, फैज़ुद्दीन अशरफी, अब्दुल सादिक के अलावा दीगर मौजूद थे। मोहम्मद ताहिर चेयरमैन ने ट्रस्ट के अगराज व मकसद बयान करते हुए कहा कि इलाके के स्कूल इंतज़ामिया से बात करते हुए एक असातिज़ा का तखर्रुर किया जाएगा जो सिर्फ दीनियात पढ़ाने पर मामूर होंगे। इसके अलावा स्कॉलरशिप और सेहत और गरीब लड़कियों की शादी का नज़म शामिल है। ज़िले प्रकाशम के नागमपल्ली इलाके में खातून अपने ही मालिक के हाथों मौत का शिकार बन गई। तफसीलात के मुताबिक लक्ष्मी नामी खातून अपने 3 मासूम बच्चों के गुजर बसर के लिए श्रीनिवास नामी शख्स के मकान में काम किया करती थी, जहां श्रीनिवास ने लक्ष्मी के साथ दस्त दराजी की कोशिश की। लक्ष्मी के इनकार पर इसने चाकू से वार करते हुए लक्ष्मी का कत्ल कर दिया। नागमपल्ली पुलिस को इत्तला मिलते ही वो मकाम हादसे पर पहुंच गए और नाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया। श्रीनिवास मफरूर बताया जा रहा है। पुलिस ने केस मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है और मफरूर शख्स की तलाश शुरू कर दी। हमारे माशरे में बुराई सर चढ़ कर बोलने लगी है। ऐसे शर्मनाक वाक़े सामने आ रहे हैं जिसके ज़रिए सारा समाज को शर्मसार करके रख दिया जा रहा है। ऐसा एक वाक़या बंजारा हिल्स भोलानगर के रहने वाले
फरहाना बेगम की शादी मोहम्मद ख्वाजा नामी शख्स से हुई थी जो तरकारी का कारोबार करता है। फरहाना के नाजायज़ ताल्लुक़ात अपने ही बहन भाई जहांगीर से क़ायम हो गए थे। 19 दिन कबल जहांगीर और फरहाना ने मोहम्मद ख्वाजा को साथ ले जाकर महेश्वरम के तालाब के करीब गला घोट कर कत्ल कर दिया था। हुमायूं नगर पुलिस ने इस मामले को हल करते हुए फरहाना और इसके बहन भाई और आशिक जहांगीर को गिरफ्तार करते हुए अदालती तहवील में दे दिया। एक शख्स को अपनी बीवी को साड़ू के सामने निकलने देना महंगा साबित हुआ। नतीजन में बीवी और साड़ू में नाजायज़ ताल्लुकात कायम हो गए। ये राज को छुपाने की दोनों ने कोशिश शुरू कर दी थी। इस राज का पता किसी तरह उसके शौहर को हो गया। बीवी ने राज को दफन करने के बजाय शौहर को दफन कर देने का मंसूबा बनाया, मगर कई मरतबा ये कोशिश नाकाम हो गई। आज से लगभग 19 दिन कबल बीवी ने अपने शौहर को कुछ खरीदी का बहाना बनाते हुए उसे पुराने शहर ले गई। वहाँ से बीवी ने महेश्वरम चलने शौहर से इसरार करने लगी। झांसा दिया कि वहाँ सस्ते दामों पर शॉपिंग हो सकती है। इसने अपनी बीवी पर एतमाद किया और महेश्वरम चलने राज़ी हो गया। महेश्वरम पहुँचते ही बीवी और साड़ों ने मिलकर इसका गला दबा दिया। नतीजतन इसकी बरसरे मौत वाक़ हो गई। दोनों ने नाश को घसीट कर महेश्वरम के नाले में डाल दिया और राह फरार इख्तियार कर ली। पुलिस हुमायूं नगर ने इस मामले को हल करते हुए दोनों को गिरफ्तार किया और तफ्तीश पर दोनों ने इक़बाल जुर्म किया। कंप्लेंट किया गया कि मोहम्मद ख्वाजा मिसिंग बोल के उनका वाइफ जो है आके कंप्लेंट की है। तो कंप्लेंट्स में इंस्पेक्टर हुमायूं नगर एफआईआर दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। इन्वेस्टिगेशन के सिलसिला में टास्क फोर्स साउथ जोन टीम से मदद लेके जो सस्पेक्ट थे इनके जो डिसीजन के बहन के एल्डर सिस्टर और उनका हस्बैंड के ऊपर जहांगीर और फरहाना बेगम पे एक नजर डाला गया। उनका जो मूवमेंट था उनके ऊपर हमारे को डाउट था और सिलसिले में उनको कस्टडी में लेके आज इंटरोगेशन करने से जो मिसिंग पर्सन था मोहम्मद ख्वाजा को ले जाकर कंदुकुर विलेज के बिल्कुल रोड के थोड़ा बगल में जो ट्रेंच रोड के लिए खोद के था उसमें गला खोद के उसमें डाल के उसको दफना के एस्केप थे। तो आज उनको अरेस्ट करके इंटरोगेशन करने से पता चला कि बॉडी उधर मार के दफना गया। आज फॉरेंसिक और तहसीलदार कंदुकुर के हेल्प से हमने आज एक्सह्यूम करके बॉडी को रिकवरी करके इन लोगों को अरेस्ट करके कोर्ट को भेजा। मेट्रो टीवी की जानिब से पेश किए जाने वाला प्रोग्राम खास बात हमारे साथ में खुसरो पाशा बियाबानी सदर नशीर आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड से की गई बातचीत को आज दोबारा नशर किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं मेट्रो टीवी। मेट्रो टीवी का खास प्रोग्राम खास बात हमारे साथ मौजूद है खुसरो पाशा बियाबानी साहब जो वक्फ के चेयरमैन साहब हैं। हम उनसे कुछ सवालात करेंगे। आपका इस प्रोग्राम में खैर मकदम है चेयरमैन साहब। सुबह पहले आपसे पहला सवाल है, मौला अली की वक्फ अराजी पर वक्फ बोर्ड ने मंदिर बनाने की क्यों इजाज़त दी? सब में पहले कि कोई मंदिर बनाने की इजाज़त नहीं दी गई, ना ही कोई मंदिर को ज़मीन लीज पे दी गई। वो मंदिर पिछले 30-40 साल से वहाँ पर है। जो लीज पे दी गई वो उस मंदिर के बाजू को ज़मीन थी, उस पर भी एक आदमी 35 साल से काबिज था। वो बोर्ड पे रुजू हुआ कि मुझे उसको किराएदार बनाया जाए। तो हम वफ़ की आमदनी बढ़ाने के लिए, कोहे मौला अली की दरगाह की आमदनी के लिए हमने वो ज़मीन एक आदमी को लीज पे दी है जिससे वफ़ का फ़ायदा हो सके। ना वो ज़मीन पर मंदिर है, ना हमने मंदिर को लीज पे दी है। किस तरह का फ़ायदा होगा इस देखिए, वफ़ के जो जायदाद इंक्रोच हो जा रहे हैं, लोग बरसों से उस पर बैठे हुए हैं। अगर किराएदार बनते हैं तो वक्फ बोर्ड को कम से कम किराया तो आएगा, आमदनी तो हासिल होगी उसकी। फ़िलहाल वक्फ बोर्ड की आमदनी क्या है और वक्फ बोर्ड खर्च क्या कर रहा है? देखिए, जब मैं चेयरमैन बना तो सालाना 15 करोड़ चिल्लर आमदनी थी, लेकिन अल्लाह के फजल से इस साल वक्फ बोर्ड की आमदनी 28 करोड़ रुपये हो चुकी है, तकरीबन डबल हो गई है। उसके अंदर ख़र्चे में तनख्वाहें रहते हैं वफ़ अमले के, और जो मंशे के लिए वफ़ किया जाता है तो पैसे उस मंशे के लिए खर्च किए जाते हैं। मुतल्लिक़ा जो खातून, जो तलाक़शुदा खातून रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए कितने लाख रुपए माहाना खर्च कर रहे हैं आप लोग? देखिए, वैसा उसमें नहीं है।
हम जो है हमारे को करीब 1 करोड़ चिल्लर रुपए हुकूमत से मिले हैं, करीब 1.5 करोड़ के ऊपर। वो जो मुतल्लिक़ा ख़वातीन हैं उनके पेंशन के लिए रखी गई है। जो भी दरख्वास्त है हर महीना उनको पेंशन दिया जाता है उसमें। तो कितने लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, कितने लोगों को मालूमात के लिए किस तरह का? कि ये स्कीम सारे आंध्र प्रदेश के मुसलमानों के लिए है, लेकिन लोग रुजू नहीं होते हैं, उस स्कीम से इस्तेफ़ादा हासिल नहीं करते हैं। जो कोई भी तलाक़शुदा औरत होती है, अगर वो जिस डिस्ट्रिक्ट की भी हो, करीमनगर हो, निज़ामाबाद हो, वरंगल हो, आदिलाबाद हो, वहाँ की फैमिली कोर्ट में वो एक दरख्वास्त दे के मैं तलाक़शुदा हूँ, मेरे 4 बच्चे हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, मुझ पर गवर्नमेंट की जो स्कीम है, डाइवर्स वुमेन स्कीम है, उससे मैं फ़ायदा हासिल करना चाहती हूँ। तो कोर्ट क्या करता है, एक रकम मुकर्रर करता है उनकी परवरिश के लिए, बच्चों की 2000, 3000, 1500, तो वो लाकर जब हमारे पास दाखिल किया जाता है तो महीना उसको पेंशन दिया करते हैं। तो ये तमाम अज़ला के लोग, शहर के लोग ये स्कीम से इस्तेफ़ादा हासिल करें। हमारे पास खातर ख़्वाह बजट है और नए बजट में भी हमने सालाना 2 करोड़ रुपये की इसकी सिफारिश की है कि जो भी औरतें अपने फॉर्म दाखिल करेंगी, अपनी दरख्वास्त दाखिल करेंगी, उनको महीना पेंशन दिया जाएगा। जो ये क़ब्रिस्तानों में जो नाजायज़ कब्ज़े हो रहे हैं, जैसे लाल दरवाज़े का हाल ही में वाक़या आया, या फसलान सर्वे भी कई ऐसे क़ब्रिस्तान हैं, उसके लिए क्या मनमानी क़ब्रिस्तान में दफनाने के लिए भी कई वहाँ के जो ज़िम्मेदार लोग होते हैं कई पैसे चार्ज कर रहे हैं, और इस तरह के कब्ज़ों से आप किस तरह से इसके लिए देख रहे हैं? देखिए, ख़ाबिज़ीन के ताल्लुक़ से आंध्र प्रदेश वक्फ़ बोर्ड ने जब से मैं चेयरमैन बना हूँ एक मुहिम के तौर पे काम कर रहा है। इसके लिए 2 टीमों का गठन किया गया। एक टास्क फोर्स ऑफिसर की टीम 5 आदमी की टीम है, दूसरी वक्फ़ प्रोटेक्शन ऑफिसर। सारे आंध्र प्रदेश में बिलखुसूस हैदराबाद में जहाँ पर भी वक्फ़ की जायदादों पर नाजायज़ ख़ाबिज़ीन थे उनको करीब 7-8 हज़ार नोटिसें इशू की गई और उनको आइडेंटिफाई किया गया। उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर रहे हैं कि वफ़ की जायदाद पे जो ख़ाबिज़ीन हैं उनको हटाया जा सके, दोबारा वो वफ़ की जायदाद जो है हमें हासिल हो, हम उसको डेवलप कर सकें, या जो भी मंशे के लिए वफ़ की गई हो उसके इस्तेमाल में है। लैंको हिल्स का जो वाक़या है, लैंको हिल्स की अराज़ी पर अब आगे क्या वक्फ़ बोर्ड सोच रहा है, किस तरह की कार्रवाई करने का वो कर रहा है? देखिए, लैंको हिल्स का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर दौरा है। वक्फ़ बोर्ड जो कर सकता है अपनी तरफ से, जैसा कि उसके अंदर सामे वालों की तरफ से हिंदुस्तान के अच्छे बड़े वकला की खिदमत हासिल किए गए, तो वहाँ पर ऐसा ना हो कि हमारा वकील कमज़ोर हो और हमारा स्टैंड नहीं रख सके। इसलिए वक्फ़ बोर्ड की तरफ से हिंदुस्तान के मशहूर क़ानूनदा जनाब फ़ैली नारिमन साहब को रखा गया है। उनके साथ सपोर्टिंग एडवोकेट के लहरी साहब को रखा गया है, और मस्जिद कमेटी की तरफ से राजू धवन साहब को रखा गया है, और हमारे तरफ से उज़ैफ़ा अहमदी को रखा गया है, एजाज़ मकबूल को रखा गया है। ये 5 के अलावा जो हाई कोर्ट में पैरवी किए हैं शफ़ीक़ुर रहमान महाजिर, उनको भी रखा गया है। हमारे वक्फ़ बोर्ड और कमेटी की तरफ से जुमला 5 वकील ठहरेंगे उसके मुकाबले में, और इंशाल्लाह जून जुलाई में वो मुक़दम आएगा। और अच्छे तरीके से हमने काउंटर बनाया है, काउंटर नेट पे डाला है। हैदराबाद बल्कि हिंदुस्तान के बड़े बड़े माहिरीन क़ानून को उस काउंटर बताया है, उनसे सलाह लेने के बाद वो काउंटर को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया। इंशाल्लाह ताला उसमें वक्फ़ बोर्ड की कामयाबी हासिल होगी। जो हाल ही में जो वाक़यात हुए, ये अतापुर की जो खुदशाही मस्जिद, बड़ी मस्जिद है, वहाँ पे कई कब्ज़े हुए, तो वहाँ के भी लोगों का कहना है कि वक्फ़ के जो एडवोकेट या वकला रहते हैं वो लोग सही नहीं हैं। देखिए, इसके अंदर 2-3 बात मैं आपको बता दूं। हमारे पास अमला कम है, हम हर जायदाद को जाके नहीं देख सकते, तो वहाँ पर मैनेजिंग कमेटियाँ हैं, वहाँ पर मुतवल्लियाँ हैं, फिर उस महल्ले के नौजवान मुसलमानों की भी जिम्मेदारी होती है कि वो वफ़ की जायदाद का प्रोटेक्ट करें। कहीं नाजायज़ कब्ज़ा होता है, हम तो जाके नहीं देख सकते, वहाँ के मुसलमान नौजवान देखकर फ़ौरन हमसे अगर रब्त पैदा करें तो फ़ौरन हम उसको रोकने में कामयाब हो सकते हैं। दूसरा, आपने वकीलों का कहा है, और जो लैंडेड केसेस, जो अच्छे भारी केसेस हैं, उसके अंदर यहाँ पर हाई कोर्ट में, ट्रिब्यूनल में, सुप्रीम कोर्ट में अच्छे वकला, सीनियर एडवोकेट्स, बड़े बड़े एडवोकेट्स, जैसा कि हमारे स्टैंडिंग काउंसिल भी ठहरेंगे। साथ ही साथ हैदराबाद की जो मशहूर वकला है, कई मुकदमे में हमने प्रकाश रेड्डी को लिया है, वेदुल्ला वेंकट रमना को लिया है, महाजिर साहब को लिया है। जो ज़मीन के अच्छे केसेस है उसके लिए हम सीनियर एडवोकेट्स की खिदमत हासिल कर रहे हैं, और उसके काउंटर दाखिल करने से पहले चेक कर रहे हैं, और इन अल्लाह के फजल से हम कामयाबी हासिल कर रहे हैं। करीब 250 केसेस हमने जीता है 2 साल के अंदर।
ये जो हाल ही में जो बड़ा वाक़या हुआ है कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के नाम पे जो काजियाँ जो काम कर रहे हैं, इसके लिए क्या खुसूसी इक़दाम उठा रहे हैं? कई ऐसे काजियों के नाम आए बहुत बड़े बड़े। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज तो इस्लाम में हराम है। ये जो चैनल पे बताया गया है, एक खाजी नहीं किया, एक नायब खजात का जो काम करता था वो बंदा, उस किस्म का उसका बातचीत हुई, शादीशुदा औरत के लिए इतने, और क्या करते हैं जवान बच्ची उम्र के लिहाज से उसने कुछ पैसों का तयन किया था, उसके ख़िलाफ़ तो पुलिस में मुकदमा दर्ज है। वक्फ बोर्ड की तरफ से एमरजेंसी सारे आंध्र प्रदेश के सदर खाजियों की मीटिंग तलब की गई और उसके अंदर उनको एक मशवरा दिया गया, एक हिदायत दी गई कि आप लोग कोई भी बाहर के कंट्रीज़ से लोग आते हैं यहाँ पर शादी पढ़ाने के लिए, उनकी शादी ना पढ़ाएं तब तक कि वो उनकी कौंसलेट से, उनके एम्बेसडर से, उनकी हुकूमत से शादी का परमिशन लेके ना आए। और अल्लाह के फजल से आप देखते हैं ये 1 साल भर के अंदर एक ही वाक़या हुआ है और वो भी बच्ची हमारी यहाँ की बाहर नहीं गई। कड़ी नज़र रखे हुए हैं, जो भी खाजी इनके ख़िलाफ़ काम करता है उनको फ़ौरन एक्शन लिया जाता है। आज से 8 दिन कबल जो सुल्तान बाज़ार का खाजी जो ये उनके खजात के एरिया में हुआ था, गवर्नमेंट ने उनके खजात भी बर्खास्त कर दी गई है, उनको निकाह पढ़ाने का भी परमिशन ख़त्म कर दिया गया है। बखा जितने बड़े खाजियाँ हैं उसके अंदर वक्फ बोर्ड रब्त कायम किया हुआ है, उसके अंदर ये इंटरकास्ट मैरिजेस हो या क्या बोलते हैं जो बच्चों को भगा के लेके आ जाते, तमाम चीज़ों पे नज़र रखी गई है कि इसकी रोकथाम हो सके। और मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ हमारे खाजी साहबान से कि वो ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे जिससे हमारे मुसलमानों पर, माशरे पर किसी उंगली उठाई जाए। मस्जिद इमामपुरा जिया गोड़े में फ़िलहाल अराजी कितनी है? उसकी करीब 13 एकड़ अराजी है उसके अंदर भी इंक्रोचर्स को नोटिस दिए गए हैं और कुछ बाउंड्री वाल का भी मसला है और कुछ केसेस भी उसके पेंडिंग है, उसको देखा जा रहा है उसको। ये कारवान कुतुबशाही मस्जिद के कितने मलगियाँ हैं? देखिए वो रिकॉर्ड देख के बोलना पड़ेगा। उसकी भी काफ़ी कारवान में कुतुबशाही 2-3 मसाजिद हैं, उसकी भी काफ़ी अराजियाँ हैं और वहाँ के लोकल MLA भी एक मस्जिद के सदर हैं और वहाँ की कमेटियाँ हैं और कोर्ट में केसेस जारी है, उसके ऊपर भी नज़र रखी गई है। और हम हर 3 महीने को एक रिव्यू ले रहे हैं कि हमारे कोर्टों का स्टेटस क्या है, मुकदमे कहाँ तक पहुँचे हैं, उसके अंदर क्या काउंटर दाखिल किए गए हैं और उसका भी जायज़ा लिया जा रहा है उसका। और एक निकाह पढ़ाने के लिए जो खाजिया मनमानी फ़ीस ले रहे हैं, इसके लिए क्या किस तरह का आप सोच रहे हैं? कई शिकायतें भी आपके पास भी आते हैं और अमूमन हमारे चैनल को भी आते हैं, इस तरह की मनमानी खाजियाँ फ़ीस वो कर रहे हैं और एक एरिया छोड़ के अमूमन झगड़े भी होते हैं ऐसे खाजियों में, तो इसके लिए क्या आप खुसूसी कोई इक़दाम उठाएँ? ये तो ये आज से नहीं, करीब निज़ाम खजात करीब ये 300-350 साल से आसिफ जाही दौर से खजात का निज़ाम दक्कन में राइज है और अपना खाजियों का एरिया है। खुसूसन आपको झगड़े सिर्फ ये नए शहर में 2-3 खाजियों की वजह से मिलते हैं, जो बेहद अफसोस की बात है। और जहाँ तक दूसरे आप अजला में देखिए, आप कहीं से भी कोई शिकायत आपको नहीं मिलती इस तरह की। और खाजियों की फ़ीस की बात है तो उसके अंदर ये भी इसमें तय किया गया था, अगर कोई गरीब बच्ची की शादी चंदा करके महल्ले वाले उसकी शादी करते हैं तो मैंने खाजी साहबान से ये क्या बोलते हैं गुजारिश की थी कि वैसे गरीब बच्चों की शादियों में टोटल फ़ीस माफ़ करें। और जो शादी खानों में अच्छे शादियां होती हैं जो हज़ारों लाखों रुपए ख़र्चा करते हैं, उसके अंदर बच्ची वाले से 500 और बच्चे वाले से 600 रुपये, यानी 1100। ये अंजुमन ने खजात खुद तय करी थी कि एक शादी के लिए 1100 रुपये लिए जाएंगे, बच्ची से 500 और बच्चे से 600 रुपये। इसके लिए हुकूमत में ने कोई फ़ीस तय नहीं की गई है, वक्फ बोर्ड में कोई फ़ीस तय नहीं की गई है। 1100 रुपये लेना मुनासिब है, उससे बढ़ के लेना गलत है। और ये जो कब्रिस्तान में जो कब्ज़े हो रहे हैं और कब्रिस्तान में जो ये मनमानी फ़ीस जो ले रहे हैं खबर तफहीम करने के लिए 500-1000 रुपये, 4000 रुपये, 5000 रुपये, इसके लिए कैसा आप इसके लिए क्या सोच रहे हैं? देखिए इसके अंदर क्या है, जो मुतवल्लिज़ हैं वहाँ पर वक्फ में जो है यानी तदफीन अमवात का भी इसमें आमदनी बताई गई है, तो 2500 अगर ऐसा लिया जाए तो मुनासिब है। लेकिन जो वक्फ बोर्ड हमारे तरफ से हम जो कब्रिस्तान यहाँ पर अलॉट किए गए हैं वहाँ पर किसी से कोई फ़ीस नहीं ली, क्या बोलते हैं रकम नहीं ली जाती, उल्टा उनको जो है फ्री दफन किया जाता है। और दूसरी बात, परसों ही हमारे बोर्ड में एक रेजोल्यूशन लिया गया है कि आंध्र प्रदेश भर में जो लावारिस मौतें होती हैं, जो मुसलमान मर जाते हैं रोडों पे, उसके वक्फ बोर्ड ने जिम्मेदारी ली है सारा आंध्र प्रदेश में कि उनके कफन दफन के लिए वक्फ बोर्ड अपने तरफ से 2500 रुपये देगा, अपने तरफ से खबर खुदाएगा और उनकी तदफीन अमल में आएंगी।
और और ख़ास तौर पे जब शिकायतें आती हैं 25,000 ले रहे हैं, 50,000 ले रहे हैं, तो मैं ये ख्वाहिश करूँगा कि हमें दरख्वास्त दें कि फ़लाँ मुतवली ने हमसे 25,000 रुपये पूछा, 10,000 रुपये पूछा। ये ओरली बोलते हैं। अगर कोई कागज़ी तहरीरी तौर पे कोई लिख के देता है तो हम मुतवली के ख़िलाफ़ और मस्जिद कमेटी के ख़िलाफ़ एक्शन ले सकते हैं कि आप ये खबर के लिए इतने हज़ारों रुपये कैसा पूछ रहे हैं। तो अब चलते चलते आपसे एक गुजारिश और एक है कि आप आवाम को बता दें कि आपके वक्फ बोर्ड के तहत क्या क्या चीज़ें हैं जो फ़ायदा उठा सकते हैं मुसलमान लोग आपके दफ्तर को आके, या आप किस किस तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं? देखिए, वक्फ बोर्ड में तो वक्फ बोर्ड का काम मंशे वक्फ की तकमील करना रहता है, लेकिन हुकूमत ने कुछ ज़िम्मेदारी दी है, महकमे अक़लियती बहबूद है, और हुकूमत की तरफ से शायद ही आपको हिंदुस्तान भर में ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी जो हमारे CM जनाब किरण कुमार रेड्डी साहब ने मुसलमानों के लिए 1027 करोड़ रुपये का बजट दिया है। तो उसके लिए मुसलमानों के लिए कई ऐसे स्कीम्स हैं जिससे अपन इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि मुसलमान रुजू हों। जैसा कि आप माइनॉरिटीज़ फाइनेंस कॉरपोरेशन से आप लोन्स ले सकते हैं, उसके अंदर 30% सब्सिडी है। हर डिस्ट्रिक्ट में वहाँ एक सा AD होता है, उससे रब्त पैदा कर लोन जो है उसके अंदर ले सकते हैं। वक्फ बोर्ड के अंदर तलाक़शुदा औरतों के लिए पेंशन है, उसके लिए आप रुजू हो सकते हैं। फिर हुकूमत के अंदर मैस मैरिजेस की स्कीम्स है, तो वहाँ पर जाकर इस्तेफ़ादा। महल्ले में बच्चे 2,000-5,000 रुपये डाल के शादी कर रहे हैं गरीब बच्चों की, जबकि हुकूमत खुद जो है 25,000 रुपये एक शादी को दे रही है। अगर आप रुजू होते हैं तो आपको 25,000 रुपये आपको वो मिल सकते हैं। ऐसे कई गवर्नमेंट की स्कीम्स है जिससे इस्तेफ़ादा हासिल करना चाहिए। तो अक़लियती डिपार्टमेंट से आप नेट पे मारिए, आप आ जाता आप किसके लिए क्या क्या स्कीमें बनी हैं। तो अब इसके अंदर जो रखा गया है, हम ये सोच रहे, हुकूमत ने आज अच्छा बहुत बड़ा बजट वक्फ बोर्ड के लिए रखा है। जो कमर्शियल स्पेस हैं, अच्छे जगहों पे जो के प्रॉपर्टीज़ खाली हैं, वहाँ पर मलियाँ बनाए जाए और गरीब मुसलमानों को मलियाँ दी जाए ताकि उनके लिए एक रोज़गार फराम हो सके। ये काम वक्फ बोर्ड करने जा रहा है। ऑलरेडी हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स बन रहा है जो 1,65,000 SFT से है। पीछे आज से 1 साल पहले ताड़पत्री में 25 मलियों का संग बुनियाद रखा गया, फिर उसके बाद उसका इफ्तिताह भी अमल में आया और 25 मुसलमान नौजवान रोज़गार को उसमें रोज़गार मिला। ऐसा हम आंध्र प्रदेश भर में आइडेंटिफाई कर रहे हैं जहाँ पर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स पढ़ सकते हैं, वहाँ पर मलियाँ बनाया जाए और गरीब मुसलमानों को दी जाए। पेश इमाम और मौज़नों के लिए भी हुकूमत संजीदगी से गौर कर रही है कि उनको नजराना दिया जाए। तो इसलिए सारे वक्फ बोर्ड की तरफ से सारे आंध्र प्रदेश की मस्जिदों का सर्वे हो चुका है। जो मस्जिदों का आमदनी नहीं है, जहाँ पर खरिया में गांव में मसाजिद हैं जो बड़ी मुश्किल से मेंटेन होते हैं, अनकरीब में जो है मैं समझता हूँ चीफ मिनिस्टर साहब से भी ख्वाहिश करूँगा कि इसका ऐलान करें। जो पेशवा मौज़नों के लिए उसको तनख्वाह तो नहीं बोल सकते, नज़र बोल सकते हैं, पेश करें ताकि इमामों को उससे सहूलत हासिल हो। शुक्रिया साहब आपका हमारे प्रोग्राम में शिरकत करने का, और बहुत बहुत शुक्रिया। हम शुक्रगुजार हैं आपके कि आप आके हमारे कुछ वक्त दिए, और हम इजाज़त चाहते हैं हमारे लोगों से। मेट्रो TV उर्दू ख़बरों में हम हर इतवार के दिन जो है एक प्रोग्राम करेंगे। ख़ास बात हमारे साथ में एक नई शख्सियत होंगी जो हम पहले आगाज़ किए हैं खुसर पाशा बियाबानी साहब से, और हम इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। खबरों के अख्ताम से कबल दोबारा एक नज़र सुर्खियों पर। कुकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड पुलिस ने अगवा करने वाली एक टोली को किया गिरफ्तार। TRS से मुअत्तल शुदा लीडर रघुनंदन की जानिब से लगाए गए इल्जामात पर अदम कार्रवाई, CBI की जानिब से तहकीकात का मुतालबा। चित्तूर में खानगी फाइनेंसर की जानिब से किसान को शदीद ज़दों को फाइनेंसर को पुलिस की तायद हासिल। मेट्रो TV का खुसूसी प्रोग्राम खास बात हमारे साथ में खुसरू पाशा बियाबानी से बातचीत। इसी के साथ ही मेट्रो उर्दू खबरें यही इख्तिताम पजीर होती है। इमरान खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। कश्मीर हाउस बेगम बाजार सन 1947 से मशहूर आपकी खिदमत करते चले आ रहे हैं। शादी ब्याह हो कि वलीमा तकारीब, कश्मीर हाउस के बिना अधूरी। अपनी दावत को यादगार बनाइए कश्मीर हाउस की शमा क्लासिक बासमती राइस, हर ब्रांड के बिरयानी राइस, असली गरम मसाले, किराना आइटम्स और ड्राई फ्रूट, टिन फ्रूट्स, सॉसेस, पेंट खजूर, असली जाफरान और बरी के सौदे के साथ कश्मीर हाउस आपके साथ। सीधे चले आइए कश्मीर हाउस। याद रखें कश्मीर हाउस बेगम बाजार हैदराबाद। शमा जो रोशनी फैलाए और शमा बासमती राइस हर तकरीब की शान बढ़ाए।
पूरे खानदान का भरोसा जिस पर हो और हर किसी की पसंद बन जाए। शमा क्लासिक बासमती राइस। इसका दाना दाना अलग, जो हर दावत की लज्जत बढ़ाए। 25 किलो, 10 किलो, 5 किलो और 1 किलो के बैग में अब हर सुपरमार्केट, जनरल स्टोर और किराना स्टोर में दस्तयाब है। शमा क्लासिक बासमती राइस।